Nazir Malik, also known as Jungle Man of Kashmir, is an institution into himself. His passion for nature, devotion to all life forms, and commitment to conserve wildlife is unparalleled. He has incredible knowledge of flora and fauna of Jammu and Kashmir, especially birds, butterflies, insects, bees, and mammals. His ability to identify all 252 bird species of Jammu and Kashmir and even to identify more than 100 species just by way of their calls is a testimony to in-depth knowledge and experience he has. His unconditional love for nature, honest and poetic expression, and vast field knowledge has benefited the Jammu and Kashmir Wildlife Protection Department for last more than 3 decades. I am sure Shri Nazir will continue to benefit the government of Jammu and Kashmir and its people for their conservation efforts. We salute him on his superannuation and distinguished career and wish him a great life ahead. नज़ीर जी की जो है पहचान जो है वो सब जगह जो है बहुत मानी हुई है। मुझे लगता है जितने भी डिग्निटरीज़ जो डाचीगाम आते हैं या आए हैं वो सब इनको अच्छे से जानते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से हों, चाहे वो डिफरेंट सर्कल से हों, एक्सपर्ट्स हों। तो मैं ये कहूँगा कि मैं कई जगह इनकी मिसाल भी देता हूँ कि इंसान को जो करना चाहिए वो इतनी कमिटमेंट के साथ करना चाहिए कि उसका अपना एक निच, अपनी पहचान वहाँ बन जाए। और नज़ीर जी हमारे एग्जाम्पल हैं सबके लिए कि जब वो जहाँ बैठे उन्होंने इतनी कमिटमेंट से काम किया कि उनकी एक अपनी पहचान बन गई। तो ये एक सबके लिए मिसाल है। तो इन्हीं के शब्दों के साथ मैं इनको शुभकामनाएं देते हुए शुक्रिया करूँगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम किसी न किसी तरीके से इनके साथ आगे जुड़े रहें और इनकी जो खिदमत जो है उनका फ़ायदा लेते रहें। In my association of over 60 years with the forest and wildlife departments of various states, I hardly come across a field staff of the caliber of Nazir Malik. He combined both commitment to conservation duty as well as deep knowledge and erudition, a most rare combination. Protection of Dachigam and of the Hangul are very onerous and thankless tasks. And when Nazir was prevented from doing his duty, the pain and the frustration was so palpably apparent on his person. His work was not just his duty but a labor of love and devotion. Every time I went out with him, I learned something from him about birds, plants, or animals. People like Nazir do not retire from service to conservation, but retire to this service, and I am sure he will continue working for the cause after his retirement from government job. God bless you, Nazir. जब दाचीगाम का नाम आता है, स्पेशली मेरी उम्र के जो लोग हैं, तो उसमें एक नाम जो आता है वो कासिम वानी साहब का नाम याद आता है। फ्रंट लाइन फॉरेस्ट स्टाफ की जब बात करते हैं, लेकिन आजकल जब दाचीगाम की बात होती है तो नज़ीर मलिक साहब का नाम सरफहरिस्त आता है। नज़ीर मलिक साहब ने अपने आप को एजुकेट किया दाचीगाम के बारे में, दाचीगाम के बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, पौधों के बारे में, और ऑल्सो दाचीगाम के इकोसिस्टम के बारे में। और वो एक आला दर्जे के नेचुरलिस्ट बन के सामने, जिससे ना कि टूरिस्ट्स को फ़ायदा हुआ। जितने भी टूरिस्ट वहाँ जाते थे, मलिक साहब उनको बताते थे दाचीगाम के बारे में, जानवरों के बारे में, पौधों के बारे में, लेकिन रिसर्चर्स भी उनसे इतना ही फ़ायदा उठाते थे जितना
की पाकीज़ है। Malik Sahab, your love and affection for Dachi Gam is eternal, infectious, and it has inspired me and so many of us to care and be committed to Dachi Gam. आपको मेरी बहुत शुभकामनाएं आपकी रिटायरमेंट पर, लेकिन आप कभी रिटायर नहीं हो सकते। दाची गाम आपसे कभी अलग नहीं हो सकता और हम आपको दाची गाम में इंशाल्लाह जल्दी ही मिलेंगे। शुक्रिया। At Wildlife SOS, all of us have heard many stories about Nazir Malik and his love for the forests of Kashmir and his passion for Dachi Gam and the flora and fauna that reside there. Nazir ji, this is a personal message from me and from all of us at Wildlife SOS that we hope you will continue to visit the forests and you will continue to remain passionate about the wildlife and forests of Kashmir, and please pass it on to younger generations so they can carry on your legacy. And I also wish you a very happy and peaceful retirement. यहाँ बम्बई में जब मैं लॉकडाउन में बैठा हूँ तो मुझे कश्मीर की बहुत याद आती है। जब कश्मीर की याद आती है तो दाची गाम की याद आती है, और जब दाची गाम की याद आती है तो जाहिर है नाजिर मलिक की याद आती है। मैं जितनी भी बार दाची गाम गया हूँ मेरे साथ हो रहे हैं, और बहुत सेल्फलेस तरीके से उन्होंने दाची गाम नाम की बहुत ही खूबसूरत किताब मेरे सामने खोल दी। वहाँ के छोटे छोटे पौधों से लेकर बड़े बड़े पेड़, हिमालयन ब्लैक बेयर से लेकर मैकपाई से लेकर हंगुल के बारे में जब वो बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि वो अपने परिवार के कोई सदस्य की तारीफ़ कर रहे हों। बहुत खुशी होती है जब मैं ऐसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को मिलता हूँ, और मेरे लिए उनका दर्जा कोई आर्मी, नेवी या मिलिट्री ऑफिसर से कम नहीं है। एक मेरी गुजारिश है कि आप कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट के साथ करते रहिए, जंगलों से जुड़े रहिए, हंसते रहें, एंजॉय करिए अपना फॉरेस्ट और अपने नॉलेज को दुनिया के साथ बांटें। ऑल द बेस्ट नाजिर, ऑल द बेस्ट। अभी मुझे पता चला कि आपका रिटायरमेंट का टाइम आ गया, पर वो सिर्फ एक ऑफिशियल मेथड है, उसमें आपका कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आपका जो नेचर के साथ जो प्यार है, फॉरेस्ट के साथ जो प्यार है, आपका काम तो रुकने वाला है ही नहीं, आप तो ये करते रहेंगे। पर इस मोमेंट पे मैं आपको दो चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक मेरा पर्सनल है, जैसे हम जैसे फोटोग्राफर्स होता है, कभी कभी हम लोग इल्यूशन में आ जाते हैं, लगता है कि हम जो काम करते हैं वो सिर्फ हम ही करते हैं, किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, पर ये बिल्कुल सच नहीं है। हम जहाँ पे पहुँचे हैं उसके लिए बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे लोगों ने उसका टाइम, नॉलेज, बहुत कुछ शेयर किया। जैसे मैं आपके साथ काफ़ी टाइम फील्ड में बिताया, आपके पास से कितना सारे नॉलेज मिला, कितना कुछ सीखा हमने। तो ये कंट्रीब्यूशन के बिना आप लोगों जैसा लोगों से कंट्रीब्यूशन के बिना हम कभी यहाँ पे पहुँच नहीं पाते। तो उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। दूसरा बात यह है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन देश के लिए है, आपने इतना दिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम किया, आपका जो कमिटमेंट था, आपका जो कंट्रीब्यूशन था, आपने कंजर्वेशन के लिए कितना कुछ किया, इसके लिए पूरा देश प्राउड है। आप जैसा लोग हैं इसलिए देश आगे बढ़ते हैं, तो उसके लिए भी आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आगे का जर्नी जो नेक्स्ट फेज शुरू होने वाला है वो बहुत बेहतरीन रहेगा। आप और भी काम करते रहेंगे, हम लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी मिलेंगे। वी लव यू नज़ीर भाई, बहुत अच्छा से रहना, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। नज़ीर मलिक साहब एक एसेट है हमारी स्टेट के, और एक एनसाइक्लोपीडिया है दाची गाम के बारे में। अगर आपको दाची गाम को जानना है तो नज़ीर मलिक ही वो वाहिद शख्स है जो आपको ज़ूलॉजी, बॉटनी, ऑर्निथोलॉजी के बारे में बता सकते हैं। और काफ़ी मैंने जो है ट्रैक्स नज़ीर मलिक साहब के साथ किए हैं, उसके अलावा काफ़ी सेंसस में पार्टिसिपेट किया है, और इस इंटरेक्शन के दौरान काफ़ी कुछ नज़ीर मलिक साहब से हमने सीखा है, चाहे वो टेंजिबल हेरिटेज हो या इंटेंजिबल हेरिटेज हो या वाइल्ड लाइफ जो उनका फेवरेट सब्जेक्ट है उसके बारे में जानने का सिलसिला हो। जब अभी वो सबकदोश हो रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस से, लेकिन हमारा जो है उनके साथ पर्सनल रिलेशन रहेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि लास्ट ईयर जब मैं ट्रैक करने गया था दाची गाम में और मैं डगवन गया, जब मैं वापस आया तो हमने नज़ीर मलिक साहब का बर्थडे दाची गाम में मनाया। तो काफ़ी हमारी
यादें हैं। काफ़ी मैंने उनके फ़ोटोग्राफ्स भी खींचे हैं और इन मेमोरीज़ को हम जो है आई विल ऑलवेज चेरिश दोज मेमोरीज़। तो मैं नज़ीर मलिक साहब को, उनकी फैमिली को आई विश यू वेल। मेरी जो ज़ाती वाबस्तगी रही है, बहैसियत एक कॉलीग, बहैसियत एक दोस्त, सर्विस की शुरुआती दौर से ही रही है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। हमेशा मैंने उनको इमेंसली नॉलेजेबल, खास खुसूसन दाची गाम और उसकी बायोडाइवर्सिटी के तई जो है काफ़ी नॉलेजेबल पाया है। बल्कि ऐसा कहें कि काफ़ी हद तक जितनी भी बहुत सारे PhDs हुई हैं दाची गाम में, बहुत सारे ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स ने अपनी PhD इनके नाम डेडिकेट की हुई है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी गहरी नॉलेज रखते थे। मतलब हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि दाची गाम नज़ीर साहब के बगैर कुछ अधूरा सा लगेगा। आज चूंकि नज़ीर अहमद मलिक साहब अपना जो सर्विस करियर जो है, सर्विस एक्टिव सर्विसेज से जो है सुबकदोश हो रहे हैं या सुपर एनिवेट हो रहे हैं, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि उनकी दिलचस्पी जंगल और जंगली हयातियात के साथ जो है वो कभी कम होगी। हमेशा हम दुआगो हैं, मैं ज़ाती तौर पे इनके लिए दुआगो हूँ कि इनका जो पोस्ट रिटायरमेंट फेज़ है वो अच्छी तरह से गुजरे, खुश खरम गुजरे और इनको अब अच्छा टाइम मिले और अपनी जो फैमिली, अपनी जो अहल खाना जो है इनके, उनके साथ वक्त गुजरने का, कीमती वक्त गुजारने का अच्छा टाइम मिले। कभी भी हमारी इनको जो है ज़रूरत पड़े तो इनको बेशक हम इनके साथ साथ ही रहेंगे। कभी इनको जो है ये ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम अलग हुए हैं, हम इनके साथ साथ रहेंगे, शाना बशाना इनके साथ। ये हमारी फैमिली का पार्ट थे और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। नज़ीर साहब, जो काम आपने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए किया है वो सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो आपका पोस्ट रिटायरमेंट वक्त हो वो खुशी से गुजरे और आपसे यही इल्तिजा है कि दाची गाम नेशनल पार्क को भूलना मत, क्योंकि हांगुल को आपका इंतज़ार रहेगा। I have had numerous opportunities to be in the field with him, and every time I have found his knowledge about the flora and fauna and every aspect of biodiversity immensely enriching and enlightening. As an officer, I will always remember him as an obedient, duty-bound and punctual field person who I always saw in full field gear. As a person, he is a noble and gentle soul, always forthcoming to help and assist you. On his superannuation this month, I wish him best of luck and pray that he leads his post-retirement life in best of health and comfort. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावार पैदा। आज एक ऐसा तारीखी दिन वाइल्ड लाइफ में आया है कि हमारा एक मायनाज खूनहार काबिल मुलाजिम नज़ीर अहमद मलिक साहब रिटायर हो रहे हैं, जिसने दाची गाम नेशनल पार्क को अपनी मेहनत और लगन से दुनिया भर में मशहूर व मारूफ किया है। इस मुलाजिम की ज़हनियत और काबिलियत का नतीजा है जब भी कोई VIP टूरिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट या वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट दाची गाम आया था तो इसी एक्सपर्ट मुलाजिम की अनथक कोशिशों का नतीजा है कि ये किसी भी नायाब जानवर को दिखाया करता था। इस मुलाजिम के रिटायरमेंट ने महकमे में एक खला पैदा कर दिया जिसकी भरपाई करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। इस शख्स की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये मुलाजिम एक शायर भी था, एक एनवायरमेंटलिस्ट भी है और साथ साथ टूरिस्ट गाइड भी था। इसकी रिटायरमेंट होने पर हमें खुशी भी है और दुख भी है। खुशी इस बात की है कि एक मेहनती, वफादार, काबिल मुलाजिम और इसकी अंजाम दी हुई ड्यूटी नाकाबिल फरामोश है, और दुख इस बात का है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हम इससे भूल जाएंगे।
हमारी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जिस तरह ये मुलाजिम महकमे पर सारी ज़िंदगी छाया रहा, इसी तरह इसकी रिटायरमेंट ज़िंदगी भी गुजर जाए और हर एक इंसान के दिल में छाया रहे। हम इसकी लंबी उम्र के लिए दुआ गो है। मुझे याद है 2011 मई में हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी और पहले वीक में हमारे लिए एक वीक लॉन्ग फील्ड ट्रिप जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें दाचिगाम नेशनल पार्क में इंक्लूडेड था। जिस दिन हम दाचिगाम नेशनल पार्क जो है विजिट करने के लिए आ गए तो एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था NIC में। इस प्रोग्राम के बहुत सारे सेगमेंट्स थे और एक सेगमेंट में हमें कहा गया कि एक फॉरेस्ट गार्ड है जो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो अ पर्सन केम, उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोइम जो है हमें सुनाई, जो खुद उन्होंने लिखी थी। और उसके बाद जो बात मुझे अब तक याद है, जो सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग बात थी, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जब मैं घर जाता हूं तो मुझे घर में कहते हैं कि ये लो जंगली आ गया। तो उनका कहना था कि जब मेरे लिए कोई टर्म जंगली यूज करता है या मेरे लिए वर्ड जंगली कोई यूज करता है तो मुझे इतनी खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी जॉब के साथ जस्टिस कर रहा हूँ। इस चीज से आपको बंदे की कमिटमेंट पता चल जाती है और कमिटमेंट और डेडिकेशन की लेवल समझ में आ जाती है। ये कोई और नहीं था, हमारे अपने नज़ीर अहमद मलिक साहब थे, जो इस महीने के आखिर में जो है रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत सारी बातें उनके बारे में कहना चाहता हूँ, लेकिन 1-1.5 मिनट के टाइम में मैं सारी चीजें समराइज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं उन्हें ये कहना जरूर चाहूंगा कि आपकी जो कमिटमेंट है, आपकी जो डेडिकेशन है और आपका जो इंटेलेक्ट है पर्टिकुलरली, मैं उसको एडमायर करता हूँ। आपके साथ काम करने का मौका मिला एंड आई ऑलवेज एडमायर योर इंटेलेक्ट एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स योर जॉब। मेरी दुआ है कि आपकी जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से गुजरे। लेकिन मैं एक और चीज़ आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि डोंट थिंक दैट योर जर्नी हैज़ कम टू एन एंड। आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, जो मैं चाहूँगा आप निभाएं। वो ये कि आप अपने आप को जो है रेप्लिकेट करें। बहुत सारे लोग जो हमारे डिपार्टमेंट में नए ज्वाइन किए हुए हैं उनको ट्रेन करें और उनमें वही एंथुसियाज्म जो है इनकलकेट करने की कोशिश करें जिस एंथुसियाज्म के साथ अपनी जिंदगी अब तक जो है गुजारी है।